सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कहे। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वसता कह जाका सतगुर पूरा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा। ए तन सबो रत है रत बिन तन न होए। जो शरत अपने तिन तन लोभ रत न होए। भै पै तन खीण होए लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भौ दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे जो रते हर रंग लाए। ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भौ दुर्मत मैल गवाए। नानक गुरमुख सोहणे जो रते हर रंग लाए। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के नौजवान वीरां वल्लों कीते हुए इस उपराले सदका सिख कौम के महान सूरबीर योधे परोपकारी सरदार हरि सिंह जी नलूआ तिन्हां दी मिठी अते प्यारी याद नूं समर्पित अज दा रखिया होया ये गुरमत समागम जिस विच आप सारे बड़े प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों आपां सारियां ने सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। जिथे आपां इतिहासिक विचारां की सांझ करनी उत्थे नाल नाल गुरबाणी गुरु शब्द दीआं विचारां नूं भी समझण दा यतन करना है। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन श्लोक जिसकी आपां विचार सांझी करनी है, जिसका आपां सारियां ने पाठ सरवण किया है। ये पावन श्लोक रामकली की वार दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी का उचारण किया होया धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 949 के उपर सुभाईमान है। गुरु अमरदास महाराज इस पावन श्लोक विच संसार दे इस मनुख नूं जिंदगी दी उस सच्चाई तो जाणू करा रहे ने
ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ। ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਲਈ ਤੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੁੱਖ? ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੱਖੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਆ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 949 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
पर जिहड़ी सुंदरता बंदे दे अंदर दी आ ना, ये फटे ते लम्मे पैण तक भी अंदरों नहीं जाती। तो कमाल की गल है, बंदे दे चढ़ाई करन तो बाद भी सुंदरता का जिक्र होंदा है। वो सुंदरता है बंदे का किरदार। जिस महान योधे की याद नूं आपां समर्पित होकर बैठे हैं, सरदार हरी सिंह नलूआ। आपां नूं पता उहदा नक किदां दा सी, उहदा मत्था किदां दा सी, उहदियां अखां किदां दियां सी। आपां तो उहदी बहादुर, उन्हां दी सूरबीरता, उन्हां दा किरदार सिरजिया जिहड़ा उहदी चर्चा कर रहे हैं। जिहड़ी तन की सुंदरता होंदी है उहदी थोड़ा समा ही कोई चर्चा कर सकता है, इस तो वध के नहीं। पर जिहड़ी मन की सुंदरता, ये बारे तो भावें तुसीं सालां बद्धी भी लगे रहो, क्योंकि मन्ने की गत जे को कहे, सारे बोलो जिन्होंने बाणी आउंदी है, मन्ने की गत जे को कहे पिछे पछताए। यानी कि पछताना क्यों पवेगा? उन्हें कहना जिन्ना उन्हें मन्निया सी मैं उहदे बराबर वो गल कह नहीं सकिया, मेरे को गल कही नहीं गई। आओ एक बार रल के श्लोक दे पंक्तियां नूं गायन का यतन करिए ताकि साड़ी सुर का हिस्सा बन सकन। जिन्हां घरां च पोथियां हैगियां ने, बाणी दियां सेंचियां हैगियां, जाके एक बार, कल सुखना हैगा भी ऐतवार है, तुसीं फ्री होगे, पढ़ियो जरूर एक बार जाके, कईयां नूं याद भी होना है श्लोक, सारे पढ़ो एक बार। नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे। वाह वाह, सारियां दी रसना तो ये शब्द गायन होना चाहिए। कोई इदां दा व्यक्ति ना रहे, कोई मेरी भैन माता वीर बजुर्ग ना रहे जिहड़ा इस श्लोक नूं गावे ना। नानक ते जन सोहणे, हे नानक वो जन सोहणे ने, किहड़े ने? उहदी व्याख्या श्लोक विच। ते आपां वेखना भी असीं उस कैटागरी विच आउणे आ कि बोलो सारे नहीं आउंदे। सारे पढ़ो एक बार। तो मेरी बेनती आ, जिन्हां दा मूँह ना हिले उत्थे कैमरा 30 सकेंड खिलार के रखना, ताकि जो बाद विच अपनी वीडियो वेखण नैट तो उन्होंने पता लगे भी सारे बाणी पढ़ते सी, मैं क्यों नहीं सी पढ़ता। बई जे विआहां शादियां दे जाके तुसीं लोकां दे ते भंगड़ा पा सकदे जे, तुहानूं सद्दिया भी नहीं हुंदा कई वारी अगलियां ने। एवें तीजे घर जाके गिद्धा पाउणियां असीं, सानूं बुलाया भी नहीं हुंदा, वो अंदरों चाहुंदे भी नहीं हुंदे भी साडे घर आवे, ते एवें उत्थे टपूसियां मारी जाने असीं। ते गुरुद्वारे गुरु की बाणी पढ़न लग्गियां सानूं संग आउंदी है। हुण जे तुसीं सद्दिया है ना मैनूं साध संगत जी, ते तगड़ा हिरदा करके सुनना तुहानूं पैना। मेरी हथ जोड़ के बेनती है। नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे, वाह वाह, नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे, जो रते हर रंग लाए, जो रते हर रंग लाए, जो वाह वाह, जो रते हर रंग लाए, जो रते हर रंग लाए, ए तन सबो रत है, ए तन सबो रत है, वाह वाह, रत बिन तन न होए, रत बिन तन न होए, रत बिन तन न होए, रत बिन तन न होए,
जो शह रते अपने, जो शह रते अपने, वाह वाह। तिन तन लोभ रत न होए, तिन तन लोभ रत न होए, वाह वाह। पै पै तन क्षीण होए, पै पै तन क्षीण होए, वाह वाह। लोभ रत विचों जाए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर तात शुद्ध होए, ज्यों बैसंतर तात शुद्ध होए, वाह वाह। त्यों हर का पाओ दुर्मत मैल गवाए, त्यों हर का पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक ते जन सोहणे, नानक ते जन सोहणे, जो रते हर रंग लाए, जो रते हर रंग लाए, वाह वाह। जो रते हर रंग लाए, जो रते हर रंग लाए, किड्डा कीमती बचन है जी, आप सारे रल के गाया। मैनू लगता बिना अर्थ करन तो कईयां नूं तां समझ आ भी गए होने आ भी गुरु अमरदास जी इस श्लोक विच कहना की चाहुंदे। गुरु अमरदास महाराज कहते ने ए तन सबो रत है। पहला आप इहदे संखेप अर्थ कर लेने, बाद च दी व्याख्या करांगे ताकि समझनी सौखी हो जाए। गुरु अमरदास पातशाह जी कहते ने ए तन सबो रत है। ये जिहड़ा तन है सारा रत नाल बनिया ते रत नाल भरिया पिया। रत बिन, सारे नाल पढ़ो, रत बिन तन ना होए। रत तो बिना तन नहीं हुंदा, यानी कि खून ही है। माड़ा जिहा खून घट जाए तो फिकर पै जाता, एक्सीडेंट हो जाए किते तो सब तो पहला की प्रबंध करना पैंदा है, खून दा पूरा होएगा तां असीं इहनूं ਇਹਦੇ ऑपरेशन थिएटर 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2-4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੈਚ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਈਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਘੱਟ ਹੈ ਆਹ ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰ, ਆਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੇ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ सारा रत नाल भरिया पिया। रत बिन तन न होए, रत तो बिना तन नहीं है। पर जो शह रते अपने, जेड़े अपने शह दे रंग विच मालक दे खसम दे, को शह कौन है? खसम सच, जेड़े सच विच रंगे होए ने। तिन तन लोभ रत न होए, उन्हां विच इह खून ते पूरा हुंदा, पर लालच वाला खून नहीं हुंदा। लालच वाला खून किहड़ा हुंदा भला? जिवें आपां ने किहड़े किते भाई इहदे मूँह नूं हुण सारे बोलो की लग गया? खून लग गया। आम शब्द भला किहदे बारे बोलदे आपां जदों आपां कहने इहदे मूँह नूं खून लग गया? बोलो सारे किहदे बारे? तुसीं बोलोगे फिर गल समझ आउणी है। आम ये शब्द कुत्ते बारे बोलिया जांदा है। कुत्ते दे भाई मूँह नूं हुण तुसीं कहना भाई साहब कोलों कह के प्रमाण सुन लो, लब कुत्ता बाणी च लालच नूं कुत्ता आखिया।
बाणी च लालच नूं की आख्या जी? कुत्ता। इनू कूकर आख्या। जिवें कूकर के मूँह नूं खून लग जाए वो फिर उधर नूं होर दौड़दा। इत्थे बंदे के मूँह नूं खून लगन का की अर्थ है भला? जिन्हों 2 नंबर की कमाई खाण की आदत पै जाए, जिन्हों दूजे की कमाई उत्ते निगाह रखण की आदत पै जाए। हुण हजूर इत्थे बहुत प्यारी गल कहंदे ने, जो शहरते अपने जिहड़े अपने शहर के रंग विच रंगे गए, 3 तन लोभ रत न होए। उन्हां विच लालच वाला खून तो बिल्कुल ही नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा महाराज? कहते इस करके नहीं हुंदा, भै पै तन खीण होए। वो मालक दे भै विच रह के ना अपने तन नूं लिसा। हुण बंदे विचों खून की कमी होवे ते बंदे कोल उठिया फिरिया नहीं जाता। किते कमजोरी आ गई, इह च खून थोड़ा जिहा, ते जिहदे च लालच दे खून की कमी हुंदी है ना, वो भी लिस्सा हो जाता। फिर भै पै तन खीण होया, वो तन कमजोर हो जाता वा। किहड़े पक्षों? जदों उहनूं कोई रिश्वत के पैसे फड़ाउण लगदा, वो कहंदा भाई मेरे हत्थां जान नहीं हैगी, हुण मैं नहीं फड़ सकदा। क्यों? क्यों? कहंदा मालक दे भै ने मेरे तन नूं लिस्सा कर दिता, मैं हुण 2 नंबर के पैसे हत्थीं नहीं फड़ सकदा। लिस्सा हो जाता, कमजोर हो जाता। भै पै तन सारे बोलो खीण होए। महाराज क्यों? कहंदे लोभ रत विचों जाए। उहदा खून वग गया। अच्छा जी, ये खून वग जाए तो चिंता हो जाती है, लियाओ दबदा 2 बोतलां खून चढ़ाओ, नुकसान हो गया। यानी कि जे ये खून वग जाए तो शरीर का नुकसान आ, लालच वाला खून निकल जाए तो बंदे का फायदा है। बोलो सारे, लालच वाला खून निकल जाए तो बंदे का, ये खून शरीर चों निकल जाए तो बंदे का नुकसान है, मौत है। हुण ये खून किद्दां निकलना भला? परमेश्वर के भै च। मैं उहदे भै च रवां, मैं उस पैसे नूं हत्थ ना लावां जे ते मेरा हक आ। उच्ची बोल के दस्सिओ, नहीं बनता। कि अज समाज इन्हां नक्शे कदमां ते तुर रहा है? उच्ची बोल के दस्सिओ। अज दुनिया दुखी इत्थों ही है ना, इसे करके अज समाज पीड़ित है। मैं जी गल पहला कही, लुट कसुट बेईमानी ठगी, इधर हथ मार उधर हथ मार, ते आण के धार्मिक स्थानों पर की अरदासां हो रही, महाराज दे अरोगता, सुख शांति, साढ़े घर प्यार इतफाक बख्शिओ। ये शब्द बोले जा रहे। जदों भाई तेरे अंदर लालच का खून नक्को नक भरिया पिया है, लालच का खून, तेरे घर सुख कित्थों आ जाएगा? तू प्यार ना किदां बह जाएगा? 2 नंबर की कमाई जिन्नी तेजी नाल आउंदी है ना, खाली थां भरो, उन्नी तेजी नाल ड्रग वेचण वाले, समैकां वेचण वाले, नशियां दी तस्करियां करन वालियां दे घर पैसा आउंदा भी वेखीदा। पर जदों पैसा जांदा है ना, वो कल्ला पैसा नहीं लैके जांदा, नाल परिवारां दे जी भी लै जांदा, नुकसान भी करा जाता। पासे मातर बंदा वेख के झुरी जाता, लै इन्हां मिनटां च वेख लो पैली भी खरीद ली, किले भी बना लै, कोठियां भी बना लियां, पर समा आउंदा सब कुछ हुंदा, पर विच रहण वाला हुंदा ही नहीं। नशियां ने बर्बाद कर दिता। क्योंकि इसकी हालत पता किहड़ी सी? काटे पेड़ डाल पर ठंड। ये झल्ला जिहड़े दरखत के टाहने ते बैठा सी, उहदियां जड़ां आपे कट्टण लग पिया। हुण तुसीं पुछोगे इहदा की मतलब? इहदा मतलब यह है, पहला आंदा सी औलाद होवे, मुड़ के अपने पुत नाल बह के नशा कर रहा। पहला आंदा सी मेरी धी सुखी होवे, हुण जवाई नाल बह के, हुण जिहड़े सौहरा ते जवाई इकट्ठे बह के नशा पी रहे आ। दसो जी, सेहत बनाउण लई बंदा 200-200 300-300 किलोमीटर डॉक्टरां को दवाइयां लैण जांदा है, ते नशे की बोतल उत्ते की लिखिया भला? उत्ते की लिखिया हुंदा भला? सेहत लई हानिकारक। ਇਹਦਾ मतलब बंदे पढ़ रहा ना इदा, मन जानत सब बात, सारे बोलो, मन जानत सब जानत ही,
यानी कि जिहड़ी बोतल नूं हत्थ 'च फड़िया ना, उहदे ते लिखिआ सेहत लई हानीकारक आ। सहुरिਆਂ ने खरीद के मुੱਲ लिआंदी ते जवाई दे अगे रख दित्ती भी आ पी, इहदे नाल तेरी सेहत खराब होएगी। ते गुरुद्वारे अरदासां हो रहीआं, महाराज साडी धी दा घर सुखी वसे। ਉਹ बोलो भाई, हो रही कि नहीं हो रही? चलो साडियां अरदासां करन नाल घर सुखी वाजू। तुसीं ते अपने पुੱਤ धी दे विआह ते भी ये ਜ਼ਹਿਰ खरीद के लिआंदा ते पियाया। अजकल तो ਜਿਹੜੇ आनंद कारजां ते कोई नशा नहीं पिआउंदा, बहुते बराती छड्डो उत्थे की जाण दा फायदा। बोलो इदां हुंदा ना? ਉਹ बोलो भाई की आंदे आ, उत्थे जाण दा की फायदा? यानी कि साडे मुताबक तो उत्थे काम है ही नहीं। कोई नशे की पुड़ी वेख लो, उहदे ते भी लिखिआ अगले ने, जे कोई नशे की बोतल है उत्ते भी लिखिआ। ना साडे आनंद कारजे तो बिना हो रहे ने, ना साडे नशे। किसी ने को नवा मकान बनाया तो उत्थे भी ये अगलियां बनाउण वालियां उत्ते लिख दिता इदां भी ये सेहत का नुकसान करने वाली चीज़ है। हुण कई पुछदे जी सिखां विच नशा मना वा? वो नशा सारियां च ही मना वा। नशे ने सिख वेख के नुकसान करना, हिंदू वेख के भला करना, मुसलमान वेख के भला करना। नशा तो नशा ही आ, कल्ला सिखां वास्ते नहीं, नशा इंसान वास्ते हानिकारक ही आ। अच्छा आप सारे महंगाई नूं रोने, हाँ जी, सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जियां महंगियां हो गई, दालां महंगियां हो गई। कभी नशेड़िया ने धरना दिता भी नशा महंगा हो गया? बोल के दस्यो बोलो, उच्ची बोलो जी। अच्छा घर दे ना फ्रूट खाण तो कन्नी कतराई जाणगे, रहण दो महंगा बड़ा। उन्हां दा जवाक 3000 की समैक पी जांदा, वो जरी जांदे आ। घर का इको जवाक 2-2 हज़ार की समैक डेली पींदा, वो 60,000 जर लेंदे आ। ते उत्थों 150 के सेब लिया के घर खाण नूं कहेंगे महंगाई बड़ी आ, की करिए? उन्होंने कढ़ के 2000, उच्ची बोलो भाई, दे जा। उहदे वास्ते मंग भी लियाउंदे आ। जिदन पता लग गया भी हुण देने नहीं, फिर उत्थे डकैतियां। कुछ कसूर सरकारां दा मैं मानदा, चलो आ गैंगस्टर जो बने हैं, जो कुछ वापरिया ठीक है, समय दियां सरकारां दियां कुछ हत्थ हैगे सी, पर मंनदे उन्हां भी मापियां दियां भी कुछ गलतियां ने। असीं आप चार दीवारी अपनी हुण नशे अपने पुत्तां धीआं दे आनंद कारज असीं नशिਆਂ तो बिना करन। अच्छा कई सारा टब्बर नशा पींदे नहीं, वो भी विआहां ते पिआउंदे। सवाल ये पैदा हुंदा किहनूं खुश कर ली जी? रिश्तेदारां नूं। 3 दिन घर च पाठ भी कराया, अरदास भी कराई, कीता लोहड़ी काम सुहर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। घर भी पीती आ, अगे भी जाके पीनी आ, पिंडों भी अरदास करके तुरिया भी साडा कारज गुरमत अनुसार होवे। ये कल्ला कहण तक रह गए लफ्ज, करने किने? सवाल ये पैदा होंदा। कभी सोच के वेखिया सी अपने समाज में खलोते किते? हुण सतगुर जी इत्थे किड्डी प्यारी गल कहंदे, भै पै तन। हुण जिस महान योद्धे दा तुसीं दिन मना रहे हो, पर जवानी दे विच शेरे पंजाब महाराजे दी अख ने परख लिया सी उहनूं, जदों उहनूं अपनी फौज विच भर्ती कीता सी। सरदार हरी सिंह नलवे नूं, सरदार साम सिंह अटारी वाला, अकाली फूला सिंह ते सरदार हरी सिंह नलवा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त 3 सिक्खी दे थंम सन। कदी इन्हां दी हिस्टरी पढ़ के वेखियो तुसीं। सरदार हरी सिंह नलवा करदार करैक्टर। अज दा कोई नकली शेर कोई फिल्म दा विच फिल्मां दे, वो तां शेर भी नकली ते हीरो भी नकली। उन्हां दियां स्टोरियां 5 साल के बच्चे तो लैके बजुर्गों तक सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। पर साडी कौम च इदां दे योद्धे भी होए आ जिन्हां ने शेर मारे ने, वो भी बिना हथियारां तो, चबाड़े पाड़े ने, पता ही नहीं किसी नूं भी साडे कौम दे विच इदां दे योद्धे भी हैगे सन, किरदार दे उच्चे हैगे सन। कदी ध्यान ही नहीं गया, ना असीं पढ़न ते विचारन की कदी कोशिश की है। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर इत्थे
खडूर साहब की धरती ते 2 लंगर ला के बैठे ने। एक लंगर किहड़ा है? लंगर चलिया गुर शब्द दा लंगर। आ कीर्तन सुनिया तुसी, पाठ गुरबाणी, ये शब्द का लंगर है जिहड़ा मेरे मन ने छकना है, तुहाडे मन ने छकना है। एक है तन का लंगर जिहड़ा तुसी पंगत विच बैठ के प्रशादा छकना है। ਉਹਦੇ बारे भी लिखे है, नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुत ही शाम पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घ्याली। लंगर विच खीर बनती है, विच घ्यो पैंदा है, यानी कि रिष्ट पुष्ट शरीर नूं तंदुरुस्त रखने वाले भोजन बनते हैं। भी तन करके भी जिहड़ा तन करके बलवान होएगा, मल अखाड़े तैयार किए, गुरु के शब्द नूं समझ के अपने ना अवकारण। सूरमा बंदा 2 किस्म नाल हुंदा है। एक हुंदा किसी दीन दुखीए दे हक विच लड़ना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े किसी दीन वास्ते लड़ना। किसी दी धी दे नाल धक्का होया, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ने तंग किया, पिंड च कोई नाल नहीं खलोता, पर एक सूरमा कहता मैं खलोता, भावें मेरे रिश्तेदार ने उधर, पर मैं परवाह नहीं करांगा, गवाही तुहाडे हक विच देवांगा भी इन्हां ने उस धी नूं तंग कीता। कई हुंदे ने ते कई अपनी रिश्तेदारियां निभाउंदे आ। उदां गातरे भी पाए आ, किरपानां भी पाईआं वा, झूठियां सवां भी खा जाणियां ने। दाज नहीं लिया, कई लड़कियां ने दाज नहीं लिया। हर थां ते लड़के वाले ही गलत नहीं, कई थावां ते लड़कियां वाले भी गलत है। उन्हें दाज नहीं सी लिया, पर जदों इल्जाम लाउणा सी नकली बिल बन गए, नकली रसीदां बन गईयां। जिहड़े बराती गए सी उन्हां चों गवाहियां भरीआं गईयां, ते गवाहियां देण वाले कहता साडे सामने दित्ती सी जी, इन्हां ने फ्रिज भी दित्ती सी, टीवी भी दित्ता सी, बिल लाओ जिथों मर्जी बना लो, पैसे नाल की नहीं बनदा जी। अगले डेट भी पा के सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ वापरदा है। ये जरूरी नहीं भी एक थां ते किते लड़के वाले, हर थां ते तुहानूं केस वेखणे पैणे ने। अज सानूं समझना पैना, अज पदार्थवादी युग विच जिहड़ी आपां गल पहिलां कही भी कल आई कुत्ते मूंही राजे पाप कमाउंदे वाली गल होई पई है। उल्टी वाड़ खेत को खाई वाली गल होई पई है। कल आई कुत्ते मूंही खाज हुआ मुर्दार कुसाई। समाज लुकाई कुत्ते मूंही हो गई है। जिवें कुत्ते के मूँह नूं खून लगा होवे, समाज के मूँह नूं की लग गया? उच्ची बोलो जी, खून लग गया। परियां पंचायतां च बहण वाले बंदे भी लालच वस हो के कई बारी उदा अखां बंद करनगे जी, मैं रब दा बड़ा वड्डा भगत हाँ, क्योंकि ये काम करने बहुत सौखे ने। माफ करना, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़ के वेखो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी बंदे दी अखां खोलदी है। कल मैं राम नाम सार, इस भयंकर समय दे विच परमेश्वर का नाम श्रेष्ठ है। अखी तां मीट है, नाक पकड़ है। महाराज काहदे लई? कहते ठगण को संसार। अखां बंद करनियां सी, मेरा ध्यान चंगे बने जुड़े। बहुतियां ने अखां बंद करना संसार नूं ठगण का काम बना लिया। क्यों? क्योंकि जो अखां बंद करिए दूजा की आंदा, ये अखां नहीं खोलदा, रब दा बड़ा वड्डा अखां दे बगला भी नहीं खोलदा। छप्पड़ दे कंढे ते कई घंटे अखां नहीं खोलदा हो। ते भगत नामदेव जी ने की आख्या भला? साप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़ै। सप अपनी कुंज लाउंदा पर जहर नहीं छड़दा। उदक माहे जैसे बग बगला, ध्यान मंड है। जिवें पानी विच उदक कहंदे पानी नूं, जिवें पानी च बगला नहीं समाधि लाउंदा, जिवें सप अपनी कुंज लाउंदा। कहंदे सप दी कुंज लत्थी वेख के ना सप दे कोल ना चल जिओ, क्योंकि कुंज ही लाई आ, जहर उहदे अंदर अजे भी हैगा। कई बंदियां ने जिंदगी च कई कुंजां लाइयां। पहलां वो बाबे नूं मनदे सी, वो कुंज लाती, मुड़ के फलाणे बाबे नूं मनन लग पे, वो कुंज लाती। जिंदगी च कुंज ही लाउंदे रहे। दूजा आंदा कोल ना जाई इहदे, इहने डंग मार देने तैनूं। इहदे विच जहर उन्ना ही आ। सप नालों वध जहर है इंसान दे विच। तां ही आख्या सी बिख ते अमृत होयो।
ਵਿਖ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸੱਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰਾ ਤੇ, ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਸਾਧ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਈ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਬਣੀ ਰਹੂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਮੇਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਵਾਤਾ? ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਪ ਕੁੰਝ ਛੋੜੈ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾੜੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਕੁੰਝ ਲਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਦਲੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਾ? ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਾ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਧਰਮ ਪੁੱਤ ਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਪਾਲ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਟਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਵਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਡਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ MLA MP ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਦੀ ਕੋ ਪੌੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋ ਤੁਕ, ਕੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਊ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਊ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ TV ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਪੈ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਆ ਰੋ, ਉਨੀ ਮੈਲ ਉਹਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ, ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਤੇ ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣ ਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ 2 ਨੋਟ ਵੱਧ ਪਾਤੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ 51,000 ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਗਿਣਕਣਾ ਸੀ 1 ਨੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਨੇ 7 ਸੌਦੇ ਲਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ 8 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
तो कई खुश हो जाते हैं, लै 2 सौदे फ्री आ गई। अगले दिन भावें डॉक्टर नूं 4000 दे आउण, वो बर्दाश्त कर लेना। हो सकता तेरा इम्तिहान नहीं लिया होवे उन्हें। कई बारी साढ़े परचे पेंदे परचियां चो आपां कई बारी फेल हो जाते हैं। 2 रिश्ते इकट्ठे आउंदे आ, एक थां ते लड़के की मंगनी हो गई, पता सी भी मातड़ परिवार है। थोड़े दिनों बाद एक होर परिवार का रिश्ता आ गया, वो तगड़ा परिवार सी, कार दाज दिंदे सी। मिनटों मिनट ही तलाता, बहाना बूना मार के उन्होंने बेचारे पैलस भी बुक किया। हाँ जी, बेचारियां बड़े स्नेह भेजे, फोटोआं भी लथियां, एलबमां भी बनिया, पर ठोक के जवाब दे दिता। पर जिथे पुत दोबारा विआह ना, उन्हें वो लड़की ने वो घूमन घेरी च पाया। दरियावां विच कई बारी घूमन घेरियां होंदियां ने ना, इदां वो घूमन घेरी उत्थे पानी घूमी जाता, तो घूमन घेरे च कई बारी फस जाए ना बंदा, बोलो जी, बजदा नहीं, घूमन घेरी ठां नूं लै जांदी। इदां कई इहो जिहियां घूमन घेरियां च फसे, फिर कल्ले बह के इदां विचार करदे मन च, हो सकदा जिहड़ा आपां रिश्ता मना कीता वो तो सुख ही मिल जांदा। इत्थे आ जाना, सारा कुछ सामने आ जाना। बीजे बिख मंगे अमृत, बोलो सारे, बीजे बिख मंगे, वेखो ये न्याओ, या न्या वेखो, बीज जहर रहा ते आस अमृत दी ला के बैठे। फरीदा लोड़े दाख बेजोरियां, किकर बीजै जट। घर दे विच किकर दा दरख्त उगया वा, ते शहरों टोकरियां लै आंदियां। गवांढियां पुछया की करन लिआंदियां, कहंदे इनूं अंगूर लगने आ। आंदे कमलिओ किकरां नूं कंडे लगदे, अंगूर नहीं लग्या करदे। हुण किकरां नूं कदी अंगूर लग सकते हैं जी? बीजियां किकरां ते आस ला के बैठे अंगूरां दियां। हुण आपां नशे वंड रहे हैं, नशे पी रहे हैं, सौखा ही तरीका। अजरों आपां सरकारां चुनदे हैं, नशे उदों पीने आ, फिर कहणगे साडे इलाके दा विकास नहीं होया भाई। भी तुसीं विकास ते बोतल राहीं पी गए। अगले 2-2.5-3 हज़ार की तुहानूं जो बोतल पियाती, नाल 5,000 रुपया देता, तुसीं विकास का तो सूटा मारता। वो सड़क जिहड़ी तुहाडे हिस्से दी तुसीं पी गए आ। हुण जिहड़े बंदे ने 5-7 करोड़ रुपया भाई सत्ता च आउण लई लाया, वो बोलो प्यारिओ, कोई ना कोई तो करूगा ना, अगला कड्डूगा ना, वो तो दाल आउण की कोशिश करेगा। नवीं सरकार जोर ला रही है, पर पुराने खुंड पैर नहीं लगन दे रहे। बोलो भाई, मैं कोई पोलिटिकल बंदा नहीं है, पर मैं ये कहना अगले, अगर उन्होंने ये लगता भी जे ये कितने ज़्यादा ईमानदारी विखा गए, असीं नंगे हो जाना, उन्हें रौला रौला पा दो भी इन्हों को सांभिया जे नहीं जा रहा, रौला पा दो तगड़े हो गए। वो अपना भुल गए। मैं सच कहना ये गल कि अज समाज खलोता कित्थे साडा। असी देश भी छड्ड रहे हैं, साढ़े बच्चे देश छड्ड रहे हैं, भी कनेडा चल जाओ, अमरीका चल जाओ, इटली चल जाओ, फ्रांस चल जाओ, जापान चल जाओ, जा रहे हैं आप। पर जे साढ़े पल्ले ईमानदारी ना होई, आप वो देश भी गंदे कर देने आ। सच है। तुसीं कहंदे हो नशा इत्थे बाहर है, नहीं? जिन्हां दे पुत्त धी बाहर आ, उन्होंने फोन ला के पुछिओ इत्थे नशा है नहीं? उत्थे भी नशियां करके लोग जेलों च बैठे आ। इत्थे तो चलो आप सरकारां ते इल्जाम ला दिंदे आ भी आम पार्टी की सरकार है जी, कांग्रेस की सरकार सी जी, कालियां की सरकार सी। अच्छा, जिहड़ा विआहां शादियां ते नशा लियाने 2 लाख का, ये किहड़ी सरकार दे के जाती भला? उच्ची बोलो भला, बोलो साध संगत जी, वो किहड़ी सरकार दे के जाती जी? वो नानका सरकार, वो दादका सरकार, ये सरकार का भी नाम लै दो ना। वो पापा जी सरकार, बीबी जी सरकार, फुੱफड़ जी सरकार, बोलो हुण मामा जी सरकार, जिहदे मूँह नूं रख के असीं पिआउने आ, ये भुल गए असीं? घरे पट्ठियां लाइयां ने। फिर असीं कसूर कढ़दे हां जी, किसे दा कसूर है? अपने आप नूं बदलना चाहिए है। आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए। अपने आप नूं सवार लो, सुखी हो जाना है।
अपने आप नूं सवारना पैना। इशनान अपने लिए करते हैं, कपड़े सोहने पाने, चंगा खाना खाने, चंगा रहना सहना पसंद करते हैं। गुरु साहब की बाणी भी इहो सिखाउंदी है सानू। अज किदां कोई किसी थां ते भज्जा फिरदा है, कोई किसी तांत्रिक दे कोल भज्जा फिरदा है, कोई किसी बाबे कोल भज्जा फिरदा जी, वो गोडे ठीक करदा जी, वो गुरदे ठीक करदा। किन्ना तमाशा बनया पे, साडा गुरदा ठीक करदा जी, साडे गोडे ठीक करते। बड़े बड़े धार्मिक आदुआं दे गोडे जाके हॉस्पिटलों चैक हो रहे हैं, दूजियां दे शक्तियां नाल गोडे ठीक कर रहे हैं। साडा समाज कमड़ा फे मगर तुरया फिरदा। कई भोले इदां दे फिरे। कोई चंगा जिहा बाबा दसो, शुगर आ मैनूं, तुहानूं की पता बाबे की अपनी वधी होएगी। हुण कई साडे कहणगे असीं भाई साहब कोलों अरदास कराउणी है, रब जी सानूं मुंडा देवे। वो सेवादार बाहर खलोता सी, कोई परिवार आया, वो लभदा फिरे, कहंदे भाई साहब कोलों अरदास कराउणी, महाराज सानूं लड़का देवे। वो सेवादारां दा किहड़े भाई साहब कोलों? कहते गुरद्वारे के भाई साहब कोलों। फलाने बाबा जी कोलों अरदास कराउणी, कहते वो अपनियां 2 धीआं, वो घर के पुत्त अपने है नहीं। तो ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਭਲਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਕ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਿਆਣਾ ਵਿਗੜਦਾ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫੇਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਣੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਦਵਾਈ ਖਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਚੇਤਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ना फिर परेशानी माहे। तू परेशानी च नहीं फिरेगा, फिर तू परेशानियां चो बाहर हो जाएगा जे तू अपने आप को रोज़ खोजना शुरू करेगा। कि अपने आप नाल कदी गल्लां कीतियां? कदी अपने आप नाल गलबात करने की कोशिश की? आप काहे रे बन खोजन जाई, की बाहर लभदा फिरदा है? की बाहर डेरियां चो जंगलों चो बाहरों लभदा फिरदा? काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी। निवास सारिਆਂ 'ਚ करदा, पर हैगा अलेप। वो साडे ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, क्योंकि वो थापिया ना जाए है ना, थापिया ना जाए, कीता ना होए आपे आप निरंजन। निरंजन वो माया की कालख तो रहत है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਅਨੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ
वो हत्या तो रहत है, तो जुग जुग हर समय एको रूप है, ਉਹਦਾ रूप नहीं बदलता। साढ़े तो रूप बदल देंगे। गड्डी का एक्सीडेंट होवे कहणगे रब ने लोड़ा मारता, जे बच जाए कहते रब ने हाथ दे के रख लिया, क्योंकि जी रब के दो रूप ने, एक नूं हाथ दे के बचा लेंदा, दूजे नूं मार दिंदा। अपनी गलती मन्निए भाई, हो सकता सेफ्टी बेल्ट ना लाई होवे, हो सकता नशा पी के चलाउंदा होवे। दद्दे दोष ना देऊं किसे, दोष करमा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया। विआहां शादियां ते जांदे आ, हुण तां पैलसां दे बाहर अगले ने लिख के ला दिता भी इत्थे तुसीं कोई अपना परसनल वैपन लैके ना आओ। उत्थे हवाई फायर करदे आ, रिवाल्वर फड़े हुंदे ने, इदां गन्नां फड़ियां हुंदियां तां नूं गोलियां चलाउंदे आ। कई वारी विआहां शादियां दे विच गोली किसी घर के मैंबर नूं लग जांदी आ, फिर कहणगे रब ने साडी खुशी च भंग पाता, साडी खुशी रब कोलों। तुहानूं रब ने कहा सी भी शराब लैके जाओ पैलस विच। आ कई बारी इलैक्शन दे विच ना वो पाबंदी ला दिंदे आ भी तुसीं पैलसां च नशा नहीं लैके जाना। बड़े औखे हो के परमिशनां लैंदे आ, सगों तुहाडे कोल तां बहाना ही बड़ा तगड़ा सी जी परमिशन नहीं मिली, पर औखे हो के MLA की सिफारश नाल, MP की सिफारश नाल परमिशनां लै लैके जहर पिआउंदे अपने रिश्तेदारां दी, जहर खुद आप जहर पिआउंदे। सतगुर की बाणी सानू इस मनमत विचों बाहर कढ़दी है, इस जहर चों सानू बाहर कढ़दी आ कि भाई आ अपने जीवन नूं सवार, अपने जीवन नूं खूबसूरत बनाओ। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, ये तुहाडे कोल पहला ते लास्ट चांस है। जिहड़ा पानी एक बारी पुल थल्लों लंघ गया उन्होंने दोबारा लंघण का मौका नहीं मिलना। जिहड़ा समा साडी जिंदगी का एक बार साडे हत्थों लंघ गया दोबारा नहीं मिलना। इनू सवार लो, खुश रहना, तुसी खिजे रहना, ये तुहाडे अपने हत्थ वासा। जे वड्डियां वाल वेख वेख के दूजियां वाल वेख के सड़ी जाओगे तो खिजे रहोगे, जे निकी निकी चीज़ में खुश रहने की आदत पाओगे हासा पल्ले पऊ साडे। कदी किसी का हाल चाल पुछो, किसी का दुख दर्द वडाओ। जे तुसी दुकान के मालक हो, तुहाडा स्टाफ 10 मिनट लेट आया तो प्यार ना बोलो उहदे नाल, अज लेट आया पुत्रा की गल है, वो कहे जी माँ ठीक नहीं सी तां 10 मिनट लेट आया। ऐ कर आ माड़ी जी सफाई करा जा मेरे ना, तो आ मेरे को पैसे ले जाके पहला माँ को दवाई दवा। वो कितना खुश हो के जाऊगा घर में। तो जे उन्होंने 5-7 दबके मारे कि तेरा रोज़ का तमाशा फड़िया, तू लेट आना, इदा करदा, सवेरे उठ के साडा जपजी साहब पढ़न का अर्थ की रह गया। हो सकता सच्ची माँ बीमार होवे उहदी, जे तुहाडियां बीमारियां दे कारण तुसीं परेशान हो सकदा बेचारा पहले ही परेशान होवे। असीं माफ़ करना, मैं गुरु की हजूरी च गल कही ना, लीडरां दे अगे असीं ट्रेयां चक्की फिरदे हां पानी दियां, दरम्याने बंदियां नूं दबके मारदे हां। लीडरां दे अगे पानी दियां, बोलो जी, उन्हें आगे ट्रेयां चक्की फिरदे आ, पानी जूस ड्राई फ्रूट विखाओ जी, साढ़े ते किते मेहरबान हो जान। अच्छा बंदा वही आ, कल नूं किते उहदा तीर तुक्का वज गया, किते वो जिन्हों तुसीं बुलाउंदे नहीं, किते कल नूं सत्ता च आ गया ना, तरसना सारिਆਂ ने उहदे नाल फोटो लवाउण नूं भी किते सड़ना दी फोटो लै जे ना किते। बंदा वही आ, आठ देख निवें सब कोई। निक्के तो निक्के घर च तुहाडे काम करन वाले भी आउंदी आ ना, उहनूं रिस्पैक्ट दी। विदेशां नूं क्यों साडा नौजवान भज रिहा, कदी कारण लभा है? उत्थे निक्के तो निक्के काम करन वाले दी भी इज्जत की जाती है। इत्थे जिन्ना नीवा काम करदा उन्होंने असीं उन्होंने घिरना ना वेने, जिन्ना कोई तुहाडे घर सफाई करदा उन्होंने वो भले मानसो ये सोचो भी तुसीं अपने चंगे घर च बैठे जे, चंगा खा रहे जे, चंगा पी रहे जे, सब कुछ होने तो बाद भी साडी खुशी कित्थे चली गई? जे खुशी का संबंध पदार्थां नाल भी होवे फिर तो तुहानूं साइकिल ते जाण वाला, पैदल तुरन वाला, इन्हां दे चेहरिਆਂ ते हासा लभना ही नहीं। पर कई बारी वो हस रहे होंदे, साडे नाल वाध हस रहे होंदे आ, सगों वड्डी गड्डी वाला खिजिया जा रहा होंदा भी हाय तेल महंगा, हाय अजे इंश्योरेंस करा के हटे आ,
हाए होने की सर्विस होने वाली आ, सैकल वाला पैदल मारदा हसदा जांदा, उहदे कोल हासा दूजे नालों वध। हुण साडे कहणगे जी किते बाबा किरपा कर दे ना बाहर दा वीज़ा लग जाए तो उत्थे मेरे को खुशी आ जानी। मैं खिजे बंदे उत्थे भी वेखे आ, उत्थे भी ਜਿਹੜੇ खुश वा वो इत्थे भी है, ਜਿਹੜੇ नहीं खुश वो बाहर जाके भी नहीं है। मैं नहीं कहता ना जाओ, जाओ जम जम जाओ, रब तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जावे ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ आ, पर जहाज जाओ। पर यह अपने दिमाग चों कढ़ दिओ भी हासा उत्थे जाके ज़्यादा आऊगा तो इत्थे नहीं आउंदा। ये दिमाग चों अपने कढ़ दो ख्याल ना। उत्थे भी खिजे मिलते बंदे डिप्रैस। अच्छा आत्महत्यावां इत्थे हुंदियां बाहर नहीं हुंदियां? बोल के दसो, उत्थे भी हुंदियां। इत्थे लड़ाइयां होंदियां उत्थे भी होंदियां। इत्थे फर्क इन्ना भी अपना गवांढी भी ओह, उत्थे गवांढी गोरा पता लगना नहीं भी राती फैंटी किहदी लगी है, राती किहदे नाल की होया। उत्थे भी चलदा काम, उत्थे भी सारा कुछ वापरदा। जिहड़े लाहौर भैड़े वो पेशावर भी भैड़े। गल अपने आप नूं सवारन दी है। देश कोई चंगा माड़ा नहीं हुंदा। जे मेरे अंदर नीयत साफ नहीं होएगी, जे मैं बेईमान अपने अंदर बेईमानी लैके बैठा, मैनूं जिथे मर्जी घल दिओ, मैं तो उत्थे भी बेईमानी करने की कोशिश करनी है। गुरु साहब की बाणी कहती बंदे अपने आप नूं सवारन की कोशिश कर, जिथे भी हैगा है, जिस देश में भी रहना, तू अपने आप नूं खुश रखण की आदत पा। ते खुश रखण का इक्को तरीका गुरु साहब का उपदेश लैके चंगे काम करन की आदत पाओ। किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा सोचो ना, किसी नूं बुरी मत ना दिओ, किसी की कमाई ते निगाह ना रख। असीं तां पुत्त भी इदां पालदे हैं, मेरे पुत्त ने वड्डे हो जाना, दाज च इहनूं कार मिलनी है। असीं तां इदां बच्चों की परवरिश करते हैं। तो थोड़ा जिहा मोड़ा पिया होना, हुण जिहड़ियां धीआं 6.5-7 बैंड लैन लग पियां, उन्हां मगर लड़के वाले पैसे चक्की फिरदे। थोड़ा जिहा दाज का रवैया, बोलो जी, हुण दाज का थोड़ा जिहा तरीका। वो लड़की आंदी है डैडी वड्डी भैन वेले तुसीं दाज दिता सी, इधर वेलो मेरे मगर दाज चक्की फिरदे अगले। क्योंकि लड़के को गल नहीं बन रही, लड़की ने 6.5-7 बैंड लै लिया। उन्होंने आंदे जे असीं ला देने, जे तो चंगी सिक्ख्या लैके माँ बाप के कोलों गई फिर तो सद लू लड़के नूं, अगे तुसीं बोल दो। हुण तो जे घरदियां ने सिखाता भी पुत्त एयरपोर्ट से लैन आउणगे ना, फोन ला के पुछनी भी वो किहड़े गेट ते खलोते, तू दूजे गेट थणी बाहर चल जी, फिर नहीं परवाह, बुलाउणा ही नहीं। ये घटनावां वापरियां कई थावां ते, दुखी वेखे मैं। सानूं पता है, पिछले जे एक नौजवान का फोन आया, कहता जी मैनूं तंग किया होया, मैं मरनूं फिरदा। मैं कहा ना वीरे, मरना को हल नहीं हुंदा ना, मैं मरना को हल नहीं है। हर समस्या नाल जूझना सीखो, समस्या नाल लड़ना सीखो, जिथे भी हैगे जे। लालच ने दुनिया नूं तबाही के कंढे ते पहुँचा दिता है। ईमानदारी, जिस बंदे दे कोल इस समय च नेक औलाद आ ना, ਉਹਦੇ वर्गा अमीर बंदा कोई नहीं। पैसे भावें ਉਹਦੇ ਕੋਲ सधारण होण, सवेरे कमा के भी शामां नूं खा लेना, जे औलाद नेक है ਉਹਦੇ वर्गा दुनिया पे अमीर बंदा ही कोई नहीं। जे औलाद आग्याकारी नहीं, पैसे दे भावें अंबार लगे होण, कल्ली कल्ली चीज़ बंदे नूं डराउण आउंदी है। तो ਉਹਦੇ वास्ते मेरी भैणों, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, घरां दे माहौल वधिया बनाउण दी कोशिश करो। जिहड़ी गल गुरु अमरदास पातशाह जी ने सलोक विच कही है भी ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, जिवें अग सोने की मैल नूं बाहर कढ़दी आ, त्यों हर का भाओ परमेश्वर का निर्मल भाओ दुरमत मैल गवाए। बंदे की दुरमत की जिहड़ी मैल आ ना, वो दूर कर दी। मन लो तुहानूं कोई नहीं वेदा, उदों भी चंगे काम करो। ये परमेश्वर का निर्मल भाव आ। जो असी गुरु अंगद साहब जी के बचन पढ़ते हैं ना, तो गुरु अंगद साहब जी कहते हैं, दिसै सुनिए जानिए सौ न पाया जाए। कहते दिसदा भी आ, सुनीदा भी आ, पर कभी रब का स्वाद नहीं माणिया।
कहते पता क्यों नहीं मानिया? कहते राहुला तेरे को तो लत्तां ही है नहीं, तू तुरेगा किदा? टुंडा तेरे को तो बावां ही है नहीं, तू तो टुंडा वा। अंदोला तेरे को तो अखां ही है नहीं, क्यों गल लगे धाए, किवें जाके धा के गल लगेगा? क्योंकि तीन चीज़ां चाहिए, तुर लई पैर चाहिए, गल वकड़ी पाउण लई बाहां चाहिए, तो वेखण लई अखां चाहिए, तेरे को तिन्न ही है नहीं। महाराज कित्थों मिलणगियां? कहते पै के चरना परमेश्वर का निर्मल भाव, रब के रस्ते ते तुर लई चरण वा। निर्मल भाव, निर्मल भाव की भला? कि मैं कदी भी कोई गलत काम, भाव ही हुंदा ना, भाव अदब कह लो तुसी, फिर निर्मल भाव। ये चरण वा, ये पैर वा। पै के चरना कर भाव के, कर कहंदे हत्थां नूं, प्यार नूं हत्थ बना लो। प्यार हत्थ वा, परमेश्वर का निर्मल भाव चरण वा। पै के चरना कर भाव के, लोएण सुरत करे, अपनी सुरत नूं लोएण बना लो, अखां बना लो। यानी कि सुरत अख वा, प्यार हत्थ वा, ते निर्मल भाव रब दे रस्ते ते तुर लई चरण वा। हैगे बंदे कोल अज तिन्ने चीज़ें है नहीं, ना निर्मल भाव आ, ना प्यार आ, ते ना सुरत ही हैगी आ। सुरत किसी होर बने लगी आ। बैठा गुरु की गोद विच हुंदा ते अंदर कुछ होर चलन दिया। बच्चा क्लासरूम च बैठा होवे, टीचर पढ़ा रहा होवे इंग्लिश, ते बच्चे दे घर दे गए हुण विआह, ते बच्चा उत्थे बैठा सोची जावे आ विआह वेख रहे, मैनूं स्कूले घलता। टीचर ने सोचना भी ये लैक्चर बच्चा मेरे वाल ध्यान दे रहा। कल्ले बच्चे नाल नहीं वापरदा, साडे नाल भी वापरदा। असीं कीर्तन सुन रहे हुंदे आ, पाठ सुन रहे हुंदे आ, सिर ऐ वज रहा हुंदा, पर सुरत इधर हुंदी नहीं, ध्यान इधर, बोलो सारे, हुंदा नहीं। पै के चरना कर भाव के, कर कहंदे हत्थां नूं, प्यार हत्थ वा, निर्मल भाव चरण वा। लोएणा सुरत करे, सुरत लोएण वा, सुरत अखां वा। नानक कह सियाणीऐ, एवं कंत मिलावा होए। इदा तेरे कंत का तेरे नाल मिलाप हो जू। आ तिन्ने चीज़ां तेरे को होनियां जरूरी ने। निर्मल भाव, प्यार, अज प्यार भी मुक गया, प्यार रह गया समाज। प्यार तो खत्म कर बैठे असीं, प्यार तो निकल गया साडे समाज विच, प्यार तो मनफी हो गया, रह गया मोह। साध संगत जी, मोह अवगुण है, प्यार गुण है। मोह नूं साड़न बारे बाणी च आख्या, प्यार नूं साड़न बारे नहीं आख्या। जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लखारी, गुर पुछ लिख विचार। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। मोह की है? मोह है औहदे नाल ठगी मार ते अपने बच्चे दे मूँह च पा। प्यार चाहता नहीं, अद्धी खवा लांगा पर किसी ना ठगी नहीं मारांगा। प्यार च बंदा अपना आप दूजे तो लटाउंदा वा, मोह च बंदा दूजे नाल धोखा करके ते अपने घर लैके आउंदा। प्यार की डेफिनेशन चमकौर साहब की गढ़ी च वेख लो। जे मोह हुंदा तो फिर बाबा अजीत सिंह नाल बाहर जा सकते सी, जुझार सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल ले जाते। जे दया सिंह नाल जा सकदा, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह जी नाल जा सकते हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जुझार सिंह नूं कहंदे मैं नाल लैके जाना। पर प्यार सी ना, प्यार च इक्को जिहे दिसे सारे, फर्क नहीं लगा। इत्थे लड़ाई लगन लगी होवे ते लीडर अपने बच्चों नूं पहलां उच्ची बोल के दस्सिओ जी, पासे कर देंदे भी इस जंग च किते मेरा पुत लपेट विच ना आ जाए, परां कर देंदे भी निकल जा पुत इत्थों। आगू अखवाउणा बहुत सौखा है, पर जिहड़े आगू दे गुण हुंदे ने,
जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आगू खवाया तो उस आगू पुणे के खरे भी उतरे ने, अपना आप कुर्बान कर दिता। इन पुत्रन के वखरी गल असी पुत्र नहीं बन पाए, पर सानू उन्होंने अपने पुत्र बना के मान दिता। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ। वखरी गल है असी उन्हों की गिनती च अज नहीं आ रहे, पर मान नाल साडे वल बांह कीती सी, साडे वल इशारा कीता सी। जे सरदार हरी सिंह नलूए वर्गियां नूं असी याद कर रहे हैं तो उन्हां पुत्रां की गिनती विच आए जिन्हां तो अपना आप कुर्बान किया, तो अखीर तक अखीरले दम तक उन्होंने सिੱਖੀ सिद्धांतां दे उत्ते पहरा दिता। योधियां अज कित्थे चला गया साडा सारा कुछ। अज सारा कुछ असी गवा के बैठे, घरां च बाणी दी विचार है नहीं, कोई गुरु के उपदेश की गल है नहीं, चार साहिबजादियां बारे पता नहीं, पंजां प्यारियां की कोई गल, गुरु के सिद्धांत की गल, कित्थे चला गया सारा कुछ। आओ इनू वापस लैके आओ, अपने घरां च बाणी दियां सैंचियां रखो, सहज पाठ भावें एक शब्द रोज़ पढ़ो, एक अंक रोज़ पढ़ो, अद्धा पढ़ लो। मेरियो भैनों, जिस धी का आनंद कारज है वो अपने आनंद कारज का आप सहज पाठ करे, ये पिरत पाओ, ये लहर खड़ी करो। जिस पुत्र का आनंद कारज है उन्होंने कहो बेटा तेरा आनंद कारज है, तू अपने आनंद कारज का सहज पाठ बोलो सारे। जे बच्चों दियां असीं बाकी गल्लां मान सकते हैं, कुछ बच्चों नूं प्यार नाल तुसीं भी मनाओ, तो मैनूं यकीन है जे मंग तुसीं अपने बच्चों सामने रखोगे, बच्चे तुहाडी ये मंग, पर वो माँ ही मंग रखेगी जिहड़ी माँ आप बाणी, जिहड़ी आप ही नहीं पढ़दी वो मंग कित्थों रखू। जिहड़ी माँ ने आप सस की रिस्पैक्ट की है वो ही धी नूं अगे मत दे के तोरेगी। धीए जे कौड़ा कसाड़ा शब्द भी मेरी कुड़मणी ने बोल दिता, मैनू पेके आण के ना दसी, नहीं तो साड़ी अपनी कुड़मणी नाल नफरत होएगी, फिक पवेगा मेरी बच्चिए, माड़ी माड़ी गल मेरे तक ना पहुँचाई। पुराने समय इकट्ठ ज़्यादा निभण का कारण भी मैनू इहो लगता, उदों मोबाइल नहीं सी हैगे, उदों जे किसी धी नूं माड़ी मोड़ को दुख तकलीफ आउंदी सी, सुनेहा देण दा तरीका है नहीं सी। अजकल तो सुख ना लाइव ही चल पैंदा काम, आंदे वेख लो मैनू आ कहता जी, वो 5-7 दिन बाद ही अगले गड्डी ते चढ़ के आ जाते भी लो साड़ी धी नूं आ कहता जी, आ कहता। हुण जिन्हें मोबाइल बनाया, जिन्हें दे पिछे कैमरा लाया, उन्होंने थोड़ा पता सी भी ये घर तोड़न दे काम आउणा इन्हें, उन्हें तो होदा चंगे कम्मां लई चीज़ां बनाईआं होण, पर साडा समाज अज पुठे बन्ने तुर पिया। मैं कुछ गल्लां हर स्टेज ते कहना, जिहड़ियां मावां अपनी धी दे पेके निक्की निक्की गल विच दखल दिंदियां ने ना, वो अपनी धी दा घर वसाउणा नहीं चाहुंदियां। सच्चाई ये है, वो अपनी धी नूं दुखी करन विच सब तो वड्डा उस मां दा हत्थ है। ते ये जिहड़ा कंडा हुण बीजिया जा रहा ना, कल नूं तुहाडे घर भी नूंह होनी है, ये मत उत्थे भी चलूगी। जे तुसीं अपनी धी नूं निक्की निक्की गल दा सलाह दे रहे हैं ना, कल नूं ये सिक्ख्या तुहाडी नूंह नूं भी तुहाडी कुड़मणी दे सकदी है। इस करके चंगे संस्कार, चंगी सिक्ख्या, चंगे विचार अपने पुत्रां धीआं नूं दिओ, ताकि साडे बच्चे बच्चियां सुखी तरीके नाल घरां विच बोलो सारे वस सकन। सत संतोख कुड़म कुड़माई आया बलराम जीओ, ये जिहड़े सत संतोख ये दैवी गुण सी, इन्हां ने साडे घर वसाउणे सी, जरिया तरिया काम आउंदा है। ये जिहड़े रब्बी गुण सी अपनी जिंदगी च वसाओ। जिहड़ी गल गुरु अमरदास महाराज जी ने कही है, ये तन सबो रत है, रत बिन तन न होए, जो शह रते अपने तिन तन, लोभ रत न होए, भै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बै संतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भाओ दुरमत मैल गवाए। ते अखीर ते कहंदे जिन्हां दी दुरमत मैल फिर निकल जे ना, नानक ते जन सोहणे। वो फिर कौन ने? वो सोहणे ने। सोहणे दा अर्थ ये नहीं उन्हां दी चमड़ी बड़ी चिट्टी है, उन्हां दे नैन नक्श बड़े तिखे ने। सोहणे किदां? सुणिओ, 2 धीआं ने, आपां विआहतियां, एक जवाई लालची होवे, एक जवाई लालची ना होवे, एक जवाई निगाह रखे भी सहुरियों कुछ ना कुछ मिले,
एक होवे जिहड़ा धी नूं इह कह के ਤੋਰੇ कदी अपने माँ बाप नूं तंग नहीं करना। जदों ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਈ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਵਲਾ ਸੀ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਭੈਣੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਵਾਈ ਸਹੁਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗੂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਬਈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਅਫਸਰ ਆ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ। ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ? ਵਿਹਾਰ ਗੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਬੰਦਿਆ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਮਜ਼ਾ ਉਦਣ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਮੁੰਦਰੀ ਇੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣੀਏ। ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਰਤੇ
रत्ते हर रंग लाए, जो रत्ते हर रंग लाए। वाह वाह। जो रत्ते हर रंग लाए, जो रत्ते हर रंग लाए। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। जो लरे दीन कहे तो, जो लरे दीन कहे तो। पुरजा पुरजा काट मारे, पुरजा पुरजा काट मारे। कबू न छाड़े खेतो, कबू न छाड़े खेतो। कोटान कोट शुकराना है वाहगुरू अकाल पुरख जी का, जिन्हों ने आप नगर दे इन्हां सारे नौजवान प्रबंधक वीरां नूं उद्यम उपराला करन दी प्रेरणा बख्शिश की। आप संगत के सहयोग नाल सोसाइटी के सारे वीरां ने रल के ये अज का सोहना उपराला किया। गुरु की गोद विच सजे हुए दीवान दे विच आपां सारियां ने शाम तो लैके हुण तक हाज़री भरी है। आओ नशियां दा त्याग करके खंडे की पौ लैके गुरु के पुत्र तियां बन के गुरबाणी आप पढ़ के जिंदगी जीण का यतन करिए। सारियां दा धन्नवाद, शुकराना मालक दा। इत्थों के समूह प्रबंधक वीर, सारियां संगतां, लंगर बनाउण वाले, लंगर वरताउण वाले, साउंड वाले वीर, जिन्नियां भी तुसीं संगतां दूरां नेड़ियां तो चल के आईयां जे, मालक सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शिश करे। साडे घरां 'ਚ गुरमत आवे, असीं अपने घरां विचों मनमत हूंज के बाहर कर सकीए। कर हुक्म मस्तक हाथ तार, विचों मार कड्डियां बुराइयां। आओ अपनी जिंदगी चों बुरियां गल्लां नूं, बुरियां ख्यालां नूं बाहर कड्ढण दा यतन करिए। चंगी सोच, चंगे विचार अपनी जिंदगी 'ਚ लैके आइए। सारिਆਂ दा धन्नवाद। आओ रल के आनंद साहब दी 6 पौड़ियों का आपां पाठ करना है। बुलंद आवाज़ में फतेह बुलाओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।